और अब देखिए बंगाल की जंग किसके, विवेकानंद। मैं हूं आपके साथ आशा झा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के बहाने बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति को नई धार देने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी के तमाम नेता खुद को विवेकानंद के अनुयायी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को हिंदुत्व विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। विश्व बंधुत्व और सर्वधर्म समभाव को हिंदू धर्म का मूल बताने वाले स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए बीजेपी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को खदेड़ने का नारा दे रही है, तो साथ ही ममता बनर्जी को बांग्लादेशी घुसपैठियोयों का मददगार साबित करने में जुटी है। सवाल है कि क्या बंगाल में ईडी की छापेमारी बीजेपी पर भारी पड़ गई है और क्या बीजेपी के पास ममता बनर्जी के बांग्ला स्वाभिमान के नैरेटिव की काट नहीं है। কখনো শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনি, কখনো রামকৃষ্ণ পড়ি, কখনো বিবেকানন্দ পড়ি, কখনো নেতাজি সুভাষচন্দ্র পড়ি। Vivekanand ji is our icon, youth icon. Swamiji clearly said that তুমি গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। বাংলা শুনতে আর সহ্য করতে পারছে না। বাংলা ভাষায় কথা বললে উড়িষ্যায় পরিযায়ী শ্রমিককে মারছে, মধ্যপ্রদেশে মারছে, রাজস্থানে মারছে, ইউপিতে মারছে, দিল্লিতে মারছে, গুজরাটে মারছে। Time, the people like Vivekananda, people like Rabindranath, people like Ram Mohan, they used to roam on this land. Now the file chor, koila chor, these people are roaming on this land. কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। All of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister? बांग्लादेशी घुसपैठियों की परास्त ममता बनर्जी की सरकार को इस बार ध्वस्त होना है। বলছে বাংলায় নাকি রোহিঙ্গা ভক্তি একটাও খুঁজে পাইনি আজ পর্যন্ত। রোহিঙ্গাই যদি হয় তো আসামে কেন হলো না এসআইআর? বলুন আপনারা। भारतीय जनता पार्टी वहां लोकतंत्र स्थापित करेगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। বাংলাদেশের বড় আসাম, রোহিঙ্গারা যায় কোথা থেকে? মায়ানমার থেকে, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এইসব হয়ে তারপর তো বাংলায় ঢুকবে। তো আজকে বাংলার উপরে হামলা কেন? রোহিঙ্গার নাম ভোটার তালিকায় থাকিব না, থাকিব না, থাকিব না। ये अपना बंधु है और ये अपना बंधु नहीं। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के औदत्त का आभास दिया। सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व और मानवता की सेवा को हिंदू धर्म का मूल बताया। शिकागो में जैसे ही उनका भाषण गूंजा, वो दुनिया में भारतीय संस्कृति के अग्रदूत बन गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रात दिन अपने पराये का राग गाने वाले हिंदुत्व की राजनीति भी अब उन्हीं को अपना नायक घोषित कर रही। मजहब के आधार पर देश और समाज को बांटने वाली सियासत भी खुद को उनका अनुयायी बता रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के बहाने स्वामी विवेकानंद पर श्रद्धा के फूल चढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने की खातिर खुद को राष्ट्रभक्त और विरोधियों को घुसपैठियों का समर्थक बता रही। विवेकानंद जी इज our icon,
youth icon. Swamiji clearly said that তুমি গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। I Hindu, as a Hindu I come here. Offer my regards, my pranam to great Swami Vivekananda ji. And what would be your appeal to the youth today? What would be your appeal to the youth? Youth should come forward to save Bengal, strengthen our India. In a book wrote by Bhagini Nivedita, that her original name is Margaret Elizabeth Nobel. The Queen of Adoration was his motherland. The Swami Vivekananda said. On the culture which we have seen that are destroying in Bengal, and Swami Vivekananda showed the path. In here, some GMC people, please see outside. The Jubaraj only is Swami Vivekananda. No other is Jubaraj. The only Jubaraj is our icon Swami Vivekananda. पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ पश्चिम बंगाल में आतताई, आतंकी, मुस्लिम परास्त, बांग्लादेशी घुसपैठियों की परास्त ममता बनर्जी की सरकार को इस बार ध्वस्त होना है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ लोकतंत्र स्थापित करेगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। साल का यह चुनाव दो भविष्य को चूज करने के बीच का चुनाव है। एक कि बंगाल के कुछ इलाकों को प्रैक्टिकली बांग्लादेश बनना है या बंगाल को 21st सेंचुरी में इस अमृत काल में विकसित भारत के स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ना है। ये दो विकल्प आज साथ में हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है ये वो महान भूमि है जहां से वंदे मातरम भी निकला और जनगण मन भी निकला। दरअसल बीजेपी को इस बात का अंदाजा लग गया है कि ईडी की रेड ने ममता बनर्जी की पार्टी को नई ताकत बख्श दी और टीएमसी को बीजेपी पर हमले का नया हथियार भी मिल गया। यानी बीजेपी ने जिस मकसद से ईडी की कार्रवाई का बचाव किया था, कम से कम सियासी तौर पर ममता ने उसे अपने पक्ष में कर लिया और यहीं से बीजेपी को कुछ और सोचना पड़ा। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर से हिंदुत्व का राग गाने लगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने बंगाल के चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने लगी। বলছে বাংলায় নাকি রোহিঙ্গা ভক্তি একটাও খুঁজে পাইনি আজ পর্যন্ত। রোহিঙ্গাই যদি হয় তো আসামে কেন হলো না এসআইআর? বলুন আপনারা, বাংলাদেশের বর্ডার তো আসাম। রোহিঙ্গারা যায় কোথা থেকে? মায়ানমার থেকে, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এইসব হয়ে তারপর তো বাংলায় ঢুকবে। তো আজকে বাংলার উপরে হামলা কেন? 14 ফেব্রুয়ারির পরে এই চোরেদের পার্টি তৃণমূল তারা বলছে ভোটে লড়বো না।